Good morning, dear student. Welcome to your maths class. Today we are here related to chapter number 13, which is related to surface area and volume of 3D shapes. Okay, we have first cuboid, first is cube, second is cuboid, third cylinder, fourth is cone, and fifth is sphere. So one by one we will introduce these things. Firstly, cube. If a figure have all sides equal in a cube and cuboid, the difference is that in cube all sides are equal, but in cuboid there is L, B, H are different. Okay, length, breadth, height are not equal, but in cube all L, B, H will be equal. Okay, the curved surface area for this is 4L square, total surface area 6L square, volume is L cube. L is the side of cuboid. Okay. Now curved surface area of this is 2H L plus B. H stands for height, L for length, B for breadth. And total surface area 2LB plus BH plus HL. And volume is L into B into H. Okay. This is cube and cuboid. Third one is cylinder. In a cylinder, this will be radius of circle, base circle and top circle. Radius will be same in a cylinder, and this will be the height of this cylinder. The curved surface area will be 2 pi RH, curved surface area of this surface. Curved surface होता है जो वो दीवारों का होता है हमारा यहाँ का, बट टॉप और बॉटम जब हम ऐड करते हैं तो उसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं. सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई RH, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई RH. कर्व तो होगा ही होगा टोटल में, बट टॉप एंड बॉटम ऐड हो जाएंगे. इट मीन्स टॉप एंड बॉटम में 2 सर्कल्स हैं तो 2 पाई R स्क्वायर, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स. देन वॉल्यूम इज पाई R स्क्वायर H. ओके. नाउ कोन. Cone is like a shape of a cap. Okay. Now this is the radius of base, and this is the height of cone, and this is the slant height. L will be the slant height. So curved surface area of cone will be pi R L. Curved surface area of this portion. Okay. Now total surface area curved surface plus base. Base में क्या है? Circle. So pi R square. One circle है तो pi R square. So volume will be 1/3 of cylinder. It means 1/3 pi R square H. 1/3 of volume of cylinder. Cylinder का था pi R square H, तो कोन का क्या होगा? 1/3 pi R square H. स्फीयर में है, स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया 4 pi R square and total surface area 4 pi R square. Both are same. Volume is 4/3 pi R cube. स्फीयर में टोटल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होता है पूरे होल स्फीयर में, बट अगर हेमिस्फीयर होगा, हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई R स्क्वायर और टोटल क्या होगा? 3 पाई R स्क्वायर. ओके. एंड वॉल्यूम विल बी 2/3 pi R. You half of all these things because in a hemisphere, if we will see this is the hemisphere, this is the curved surface area. टोटल में ऊपर वाला सर्कल भी ऐड होगा, so इसलिए 3 pi R स्क्वायर है. Okay, these are the intro of this chapter. Friends, exercise 13.1. First question is 2 cubes are given. They said that 2 cubes are given and join end to end. It means उनको साथ में join किया गया है. So जो एक का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 is given 64 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम है एक क्यूब का दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब. एंड इसी तरह के 2 क्यूब्स हैं वो आपस में ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनका अपन जो क्यूबॉइड बनेगा, इनको जोड़ने के बाद अगर मैंने इनको आपस में जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? क्यूबॉइड. बिकॉज क्यूब की शेप ये होगी, क्यूब इस तरह का होगा. अगर 2 क्यूब्स को मिला देंगे तो उसकी एल चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी. अगर लेंथ चेंज होगी तो वो क्या बनेगा? क्यूबॉइड. ओके. अगर वो क्यूबॉइड बन गई है तो उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हमने. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये दिया हुआ है, बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? L क्यूब. इट मीन 64. सो L इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64. इट विल बी 4 सेंटीमीटर. ओके. देन length, it means side of cube will be 4, 4 and 4. This will also be 4 and 4 because they said volume of each cube. It means दोनों का वॉल्यूम 64 होगा, तो साइड भी सभी की 4 4 आएंगे. ओके. नाउ इफ आई सॉ इन रिजल्टिंग क्यूबॉइड, अगर हम साथ में 2 क्यूब्स को रखते हैं तो उनका क्या है? उनकी
हाइट सेम रहेगी, हाइट सेम, एंड वो ब्रेड्थ है वो भी सेम रहेगी। और जो चेंज क्या होगा, लेंथ, क्योंकि वो इक्वल रखे गए हुए हैं। सो लेंथ चेंज होगी, वो कितनी होगी, 8। सो इन रिजल्टिंग cuboid, what will be the dimension? L will be 4 plus 4, it's 8 centimeter. Breadth will not change, it will be 4 centimeter, and height will remain the same, 4 centimeter. Okay, now I have to find out the surface area. वो क्या होगा, क्यूबॉइड का 2LB plus BH plus LH। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर गेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन इन दिस कि दे हैव गिवन अ वेसल इज इन द शेप ऑफ बेस इज हेमिस्फीयर एंड अपर साइड इज सिलेंडर। इस तरह का कोई वेसल है, उसका उन्होंने रेडियस गिवन है हेमिस्फीयर का, टोटल डायमीटर गिवन है 14, डायमीटर 14 गिवन है। सो रेडियस क्या होगा, 14/2, 7 सेंटीमीटर, and total height of vessel is given, total height of vessel is 13. Okay, now diameter is 14, I find the radius will be 7, so this radius will also be 7. Okay, then they said that they find the inner surface area of this vessel. Okay, if I have to find out the surface area, so best method is that you think कि which thing I have to paint इस वेसल में, हम कौन सी चीज़ है जो पेंट कर सकते हैं। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिलेंडर शेप का होगा, एक इनर साइड से बॉल पेंट होगी। इट मींस जो मेरा सरफेस एरिया आएगा वेसल का, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इट विल बी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इट जस्ट मींस हेमिस्फीयर। सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πRH, और हेमिस्फीयर का क्या होगा, 2πr²। ओके, नाउ रेडियस तो आई नो बिकॉज वेसल इज इन दिस फॉर्म, सर्कल्स एंड रेडियस ऑफ बोथ आर सेम, दिस इज 7, सो रेडियस ऑफ सिलेंडर विल ऑल्सो बी 7। बट हाइट क्या होगी, टोटल वेसल की हाइट है वो 13 है, तो 7 इसमें से हेमिस्फीयर की हाइट निकल गई, रेडियस निकल गया, तो बाकी क्या बचा, 13 - 7, 6 centimeter. So all values you have H and R, you will put pi value is 22/7. You will put the values and get your answer. Student, in fourth question they have given a cubical block is surmounted by a hemisphere. It means क्यूब के ऊपर जो एक हेमिस्फीयर है वो माउंट किया गया, रखा गया है, ठीक है, उल्टा करके रखा गया है। So we have to find out the curved surface area of this whole figure. So I already told you कि if you have to find out surface area, you will think what things I can paint. Okay, I have to find out surface area of this figure. So block, it means side of cube they have given 7 centimeter. Then surface area क्या होगा इस whole figure का, सबसे पहले क्या है, जो मैं क्यूब है उसे पेंट करूंगी। इट मीन्स क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6L²। इट मीन्स सारा पोर्शन है जो पेंट कर रही हूँ, टॉप बॉटम ऑल साइड्स आई विल पेंट, सो इट मीन्स 6L² टोटल सरफेस एरिया। नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैंने सारा पेंट किया है बट जहाँ पे बाउल है, बाउल अगर उल्टी करके रखी हुई है तो वो वाला पोर्शन पेंट नहीं होगा, नीचे वाला पोर्शन। सो बाउल का क्या होता है, ऊपर सर्कल होता है तो सर्कल ही गायब हो गया। इट मीन्स -πr² होगा जो मुझसे पेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, जो अगर बाउल उल्टी पड़ी है तो ये वाला पोर्शन भी पेंट करूंगी मैं। इट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। ओके, दिस फॉर्मूला आई विल गेट नाउ 1πr² plus 2πr², what remain, only 1πr²। ये माइनस का ये प्लस का, सो ओनली 1 है। नाउ ओके, इसमें ये नहीं है कि जो फॉर्मूले हमने किए हैं वही अप्लाई करने हैं, अपनी थिंकिंग से हमने फॉर्मूला को ब्रेक करके न्यू मोल्ड करके हमने फॉर्मूलाज यूज करने हैं। ओके, नाउ एल आई हैव कि साइड हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, आई कैन पुट द वैल्यू पाई 22/7। बट रेडियस, व्हाट विल बी द रेडियस, अगर मैंने बाउल रखी है उस पर पूरा कवर कर रही है तो इसका डायमीटर क्या होगा, 7 ही होगा, उसकी साइड पे रखी हुई है तो 7 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी 7/2 centimeter. So I will put the values here and get the answer. Thank you.